أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear brothers and sisters. I hope so you are fine. I am fine as well, alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So let's today start our session in the name of Allah. I am sharing you my screen. Let me know that you can see or not. And I hope so my voice is also audible to you guys. One minute. Can you see my screen? Assalamu alaikum. Walaikum assalam, Muaz. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. How about you? I'm also fine, alhamdulillah. So, before starting our today another session, another topic, new topic, I would like to ask you, Khala, did you do the research? Yes. Okay. So, can you share with us the research which you have done on live? Yes. Okay. Life is a quality that distinguishes living organism from dead organisms or non-living things. In Quran, Allah mentions human creation in Surah Al-Qiyamah, Surah Al-Mu'minun, and Surah Al-Hajj. In these surahs, Allah explains the stages of human life. Allah ने तमाम हैवानात को मिट्टी और पानी से बनाया है. All living things have a soul, which Allah mentioned in Surah Sajda. Then He proportioned him and breathed into him of my created soul. मैंने यहाँ तक ही रिसर्च की है. Okay. Very good. Moaz, you were not in the previous session. Well, let me introduce you to this topic, which is new for you. Khala, we did discussion little bit about life. So, well, this is our new topic after the Big Bang. So, like I told Khala to do the research on life, I would also like you to do the research on life. You have to solve some questions such as what is life actually and why is life crucial for us, and from the Quran take out some verses regarding what is life. Okay, so good Khala, you can do more research. I will do as well. From the Quran, I didn't include up till now any verse from the Quran. First, I will tell you from the worldly thing, and then I will tell you from the thinking of why did God create the living things, because that's a very important question, because if you talk little about why did God create the mankind, so you will get most of the answers that it's because Allah subhanahu wa ta'ala wanted to take our test. Everything has a purpose, if you know about that. You have a purpose, I have a purpose. This session have a purpose to teach you something. Like this example, you can understand that we have also a purpose of coming into this world or being created by Allah subhanahu wa ta'ala. So now our main thinking, उर्दू में भी समझाएं. well, अगर आप दुनियावी लिहाज से देखें ना, तो वो फिर मैं आपको अलग तरीके से समझाऊंगा, जैसे कि लर्निंग और ग्रोइंग, और फिर उसके अलावा मेक अ डिफरेंस, knowledge, peace and relaxation, different things, exploration in many things, और फिर reason for everything. ये है दुनियावी लिहाज से हम लोग क्यों पैदा हुए हैं. Life, why is it crucial for our life? Okay, and
अगर आप ऐसे देखें कि हम लोग देखें कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इंसानों को क्यों क्रिएट किया है, अल्लाह ताला किसी और को भी क्रिएट कर सकता था। तो व्हाट वाज सो इम्पोर्टेंट दैट अल्लाह क्रिएटेड अस, ये चीज है बहुत इम्पोर्टेंट जो हमें देखनी होगी। वी हैव टू डू रिसर्च ऑन दिस। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। हम लोग यहाँ पे दो थिंकिंग्स को सेपरेट कर लेते हैं। दोस्त अल्लाह ताला ने इंसानों को क्यों पैदा किया? वर्ल्डली, अल्लाह ने तब इंसानों को अपनी इबादत करने के लिए पैदा किया है। well, not only ibadah, we can also say that Allah subhanahu wa ta'ala wanted to take test. वो तो You फरिश्ते know, भी करते हैं। अगर तो हम आलम की बात करें ना, आलम में अरवा आई थिंक सो है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला सलाद सलाद ये तो फरिश्ते भी करते हैं। हाँ ना, इबादा के लिए नहीं सिर्फ पैदा किया। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ वही कि आलम अरवा थी, जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे मुखातिब, हर एक क्रिएशन जो भी क्रिएशन बनाई थी उससे मुखातिब होते हुए कह रहे थे कि जो है ना, कौन अब इस टेस्ट में आना चाहता है। तो कोई भी नहीं आना चाहता था, कोई, सारे लोग पीछे जा रहे थे, कोई, सारी क्रिएचर्स पीछे जा रही थी, सिवाय एक क्रिएचर के जिसने हैंड रेज किया अपना कि हाँ मैं आगे जाऊंगा, मैं इस दुनिया में जाके गलत से लड़ूंगा बातिन से। और वो थे इंसान। फिर उनका टेस्ट शुरू होता है और इससे रिलेटेड मुझे एक आया भी याद आ गई है, जिसमें लिखा हुआ है, मतलब मुझे सही से नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को, मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि उसमें लिखा हुआ है बेशक इंसान जो है मतलब ना खसारे में है। ओके, उससे रिलेटेड ही है ये आया। सो अब यहाँ पे ना हम लोग दो तरीके की थिंकिंग्स बना लेते हैं, एक तो वर्ल्डली थिंकिंग और फिर थिंकिंग लाइक in the sense, why did God, Allah create us? अब आप लोगों ने एक और चीज नोटिस की होगी कि मैं आप लोगों के साथ साथ ही बना रहा हूँ प्रेजेंटेशंस, एंड दैट इज ए गुड थिंग, बिकॉज हम लोग इसी तरीके से भी सीख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ, तो आप लोग या तो उसको राइट कर सकते हैं नोटबुक में, या फिर आप उसको नोट्स में राइट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। 1 मिनट। आप पावर पॉइंट में बना रहे हैं? जी, आप पावर पॉइंट में बना रहे हैं? yes, I always make in PowerPoint, that's why. So दिस इज द पॉइंट ऑफ थिंकिंग। अब आप मुझे लोग बताएं कि आप लोगों को समझ वैसे आ तो रहा है ना जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, कि अगर तो हम दुनियावी लिहाज से बात करें तो कोई और जगह जा रही है, अगर हम लोग इन द सेंस गॉड के हवाले से बात करें कि हाँ अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें क्यों क्रिएट किया, हाँ और भी तो कोई लोग हो सकते थे, और किसी ने भी तो ये कोई कह सकता था, अल्लाह ताला किसी और के भी तो सिलेक्ट कर सकते थे कि अभी इंसानों को नहीं बल्कि माउंटेन्स को चूज कर लेता हूँ टेस्ट और ट्रायल के लिए। और ये था कौन सा टेस्ट और ट्रायल, हमें अल्लाह ताला को हमें किस टेस्ट और ट्रायल कौन सा देना चाहते थे, ये हमें इससे बहुत ज्यादा पता चल सकता है ये सारी चीजें। आई होप सो आपको समझ आ रहा हो। तो अभी इन दोनों ना वेज को यहीं पर रख के हम लोग जो पिछली वाली प्रेजेंटेशन है
मतलब प्रेजेंटेशन नहीं, ये जो है स्लाइड्स जो, इनको इनके ऊपर फोकस कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगर हमारे पास और टाइम हुआ तो फिर हम लोग इसके ऊपर भी वर्किंग कर लेंगे स्टार्ट, वरना मैं आप लोगों को इन तीनों स्लाइड्स की पिक्चर सेंड कर दूंगा, जिसके हवाले से आप लोग रिसर्च भी कर सकें और ये लर्न और रिवाइज भी कर सकें, और इन 2 वेज पे जो मैंने अभी आपको बताया है उस पर भी रिसर्च कर सकें, क्योंकि दैट मैटर्स अ लॉट। कुछ लोगों के लिए लाइफ सिर्फ ऐसे है कि जैसे किसी कोई अल्लाह नहीं है, और हम लोग तो खुद ही क्रिएट हुए हैं किसी निज़ाम के तहत, और उसके बाद हम पैदा होकर कुछ भी कर सकते हैं जो चाहें, हम लोग खुशी वाली ज़िंदगी गुजार लें, ताकि बाद में हम लोग जब मर जाना तो फिर मसला ना हो, मतलब ये कि बाद में तो हमें मर जाना है, तो हम लोग खुशी की ज़िंदगी अभी गुजार लेते हैं जैसे हम चाहते हैं वैसे। हमें तो खुली छूट मिली हुई है, हमें हमारे कोई लॉर्ड नहीं है या कोई गॉड नहीं है, कोई अल्लाह ताला नहीं है जो हमें ना देख सके। ये वैसे तो एथियस्ट भी कह सकते हैं, वरना तो क्रिश्चियंस की भी यही फिलॉसफी है, उनकी थिंकिंग यही है कि हम यहाँ पे आए हैं, ये हमारी लाइफ है, हम जो चाहें कर सकते हैं, शराब पीना चाहें या और कुछ गलत काम करना चाहें वो भी कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि हम लोग फिर वापस चले जाएंगे, मर जाना है हमें तो एक ना एक दिन, तो हम इस दुनिया को जी कर अच्छे तरीके से खुशी से मजे करते हुए जाएं, और उनके लिए वो मजा है गलत काम करना। ओके, ये वेज मैंने आपको बताए हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए लाइफ इतना मैटर नहीं करती, लेकिन कुछ लोगों के लिए करती है। लाइफ एक ऐसी चीज है जो कि एक मुर्दा चीज में और एक जिंदा चीज में फर्क करती है। लाइफ इज अ क्वालिटी। किस तरीके की क्वालिटी? बहुत इजी सवाल है। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को इसका जवाब पता है। क्या आप लोगों को पता है? अगर तो पता है तो आप लोग बता सकते हैं, वरना फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वेल। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ। लाइफ एक ऐसी क्वालिटी है कि जो डिफरेंस फर्क रखती है लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में। बताऊं वो कैसे? वो इस तरीके से कि यहाँ पे अगर आप नीचे लिस्ट बनी हुई है देखेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे। अडेप्टेशन, होमे होमेओस्टेसिस, रिस्पॉन्स, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म। सो ये ऐसी चीजें हैं जो कि एक मुर्दा और एक जिंदा चीज में फर्क करती हैं। बताऊं वो कैसे? क्योंकि मुर्दा चीज होती है, वो मरने के बाद हम उसको या तो दफना देते हैं, अगर ना दफनाए तो उसको कोई खा लेता है। वो हिलती तो नहीं है, वो बात भी नहीं कर सकती, वो जंप भी नहीं कर सकती, वो रीड भी नहीं कर सकती, वो बुला भी नहीं सकती किसी को। उसकी रूह तो वही होती है, लेकिन उसकी बॉडी जो होती है ना, वो हिल नहीं सकती फिर, क्योंकि वो मर जाता है। उसकी रूह जो होती है फिर वो जो फरिश्ते होते हैं वो उठा लेते हैं, जो मौत के फरिश्ते होते हैं ना वो उठा लेते हैं। फिर उसको अपने सवाल मतलब उसको जवाब देना होता है सारे सवालों का। हु इज योर लॉर्ड, हु इज योर प्रॉफिट, ये सारे सवालात हैं जो एंजल्स पूछते हैं। तो डिफरेंस है ना, लाइफ ये क्वालिटी है एक जो कि फर्क बताती है किसी को, या जो डिफरेंस रखती है नॉन लिविंग थिंग्स में और लिविंग थिंग्स में। अब मुझे आप कोई बता सकता है आप में से कोई कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स? चलें ख्वारा, आप मुझे लिविंग थिंग्स के बारे में बताएं, और मुआज आप नॉन लिविंग थिंग्स में के बारे में बताएं। लिविंग थिंग्स फिरती हैं, खाती पीती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं और सांस लेती हैं। सबसे बेसिक चीज क्या है जो वो लेती हैं? अगर तो मैं ट्रीज, ह्यूमंस, इवन एनिमल्स के हवाले से और बर्ड्स के हवाले से बात करूँ ना, और समुद्री जानवरों के हवाले से, तो आप मुझे इन सबको सामने रखते हुए बताएं कि सबसे बेसिक चीज ये क्या है कि जिससे ये जिंदा रह सकती हैं। सांस लेती हैं। जी ख्वाला? सांस लेती हैं नो, सारी चीजें तो नहीं लेती, वो तो फिर और एनिमल्स और खाती ह्यूमंस पीती हैं। लेते हैं। खाती पीती हैं।
खाती पीती हैं, उनकी ग्रोथ होती है, उनकी रिप्रोडक्शन होती है, उनकी रिएक्शन होती है। उसके अलावा वो मतलब ना हर हर चीज़ का फ़ायदा ले रही होती हैं ऑक्सीजन से। बताऊँ वो कैसे? वो इस तरीके से कि फ़ायदे की अगर बात करें ना ह्यूमन्स के हवाले से, तो वो इस तरीके से होता है कि ह्यूमन्स साँस लेते हैं ऑक्सीजन से, खाना खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ओके? और वो ग्रोथ उनकी होती है, रिप्रोड्यूस होते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, यानी रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ पे। अब ट्रीज़ की बात करें तो उनका क्या होता है वो फ़ोटोसिंथेसिस लेती हैं, जो कि ऑक्सीजन से कनेक्टेड होती है। ओके, यानी उनको भी फ़ायदा मिल रहा होता है ऑक्सीजन से। वो भी खाना और पानी पी रही होती हैं। मतलब उनका खाना और पानी गोश्त वग़ैरह या फिर वेजिटेबल्स नहीं होती, न्यूट्रिशंस होती हैं और सन की हीट होती है और वो वाटर होता है जो हम उनको देते हैं। ये उनके लिए खाना और पानी होता है जो उनको हेल्दी रखता है और फ़ोटोसिंथेसिस में मदद करता है उनकी। उसके अलावा अगर आप एनिमल्स की बात करें, चाहे वो बर्ड्स या सी एनिमल्स या फिर लैंड एनिमल्स की हो बात, वो ऑक्सीजन लेते हैं, सबसे बेसिक चीज़, उनकी ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है, रिस्पॉन्स करते हैं वो हर चीज़ में। उनकी बल्कि डबल रिएक्शन होती है हमारी एक चीज़ पे। जैसे कि अगर आप किसी जगह पे भी लायन को देखेंगे ना, तो अगर आप उसके करीब होंगे, तो उसको पता होगा इसके बारे में। चाहे उसकी जो फ़ेस है ना, वो ऑपोज़िट डायरेक्शन में क्यों ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, लॉयन उस तरफ है, उसकी पीठ मुझे नज़र आ रही है, लेकिन वो मुझे नहीं देख सकता। मुझे लग रहा है कि वो मुझे नहीं देख सकता। देख सकता है वो मुझे, ओके? तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, फिर वो उनके अलग-अलग कैसे रिएक्शंस होते देख हैं। सकता? मतलब उनके ना लेवल होती है, आईसाइट होती है ना उनकी जो बहुत वो बहुत तेज़ होती है। जैसे अगर घोड़ों की बात करें ना, तो अगर कोई ब्रिज टूटा हुआ है और हम उससे ले जाना चाह रहे हैं ना घोड़े को, हमें तो नहीं पता कोई ब्रिज टूटा हुआ है या नहीं, उसको पता है, इसीलिए वो रुक जाता है। क्योंकि उसकी जो ऑब्ज़र्वेशन होती है ना, एनिमल्स की, ये बात याद रखिएगा, वो हमसे डबल होती है। मैं आपको किसी दिन ह्यूमन एनाटॉमी भी पढ़ाऊँगा और एनिमल एनाटॉमी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपको पता चलेगा फ़र्क। अच्छा, तो एनिमल्स की मैंने आपको बताया था, लैंड, सी और बर्ड्स वग़ैरह एनिमल्स की, ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बताया था। फिर वो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, शिकार करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, जंप करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, हर चीज़ पे रिएक्ट करते हैं, चाहे वो ह्यूमन्स या ट्रीज़ ही क्यों ना हो। ओके? मैंने आपको ये बता दिया। अब माज़, अब आप मुझे बताएँ कि नॉन लिविंग थिंग्स में क्या फ़र्क होता है? लिविंग थिंग्स है। थोड़ा-सा डिटेल से बताइएगा। नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं करते, मूव नहीं करते, खाना नहीं खाते, उनके बेबीज नहीं होते और वो चल सकते नहीं, वो देख सकते नहीं, वो ग्रो नहीं कर सकते। और इसकी एक इंटरेस्टिंग मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ कि आपने कहा ना और देख नहीं सकते, तो उनकी जो रूह होती है ना, वो देख सकती है। उठाने से पहले जब एंजेल्स आते हैं ना उठाने, तब वो ऐसी दुनिया में होती है जो कि इनविज़िबल है। मतलब उसकी रूह जो होती है ना, वो इनविज़िबल होती है, लेकिन वो होती उसी दुनिया में है। नॉन लिविंग थिंग्स की उहुँ, नॉन लिविंग की तो उहुँ, रूह नहीं होती। तो फल्ला। अब मैं आप लोगों को इसकी मिसाल भी इस तरीके से देता हूँ। जैसे चेयर 1 की मिनट, कोई 1 रूह मिनट, 1 होती है। मिनट, मैं आपका पहले जवाब दे दूँ? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग। ओके, अब आप ये देख सकते हैं। अब मैंने ये क्यों ड्रॉ किया है? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी चीज़ होती है जो कि कोई थिंग होती है। जैसा कि जैसा कि अगर मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूँ,
एक मिनट। अब आप देखें। मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट। अब आप देखें, ये क्या चीज है? ये कोई मटेरियल है। तो अगर आप जो है ना डिफरेंस करना सीखें। एक मिनट, पता नहीं क्या मसले हो रहे हैं ये। हम्म। तो अगर तो आप लोग देख सकते हैं ना। एक मिनट। ये मेरी जो स्क्रीन शेयर ना वो ऐसी नहीं आ रही जो जैसे मैं चाह रही। अच्छा ख्वाला, अगर आप लोग ये देख सकते हैं ना तो ये क्या चीज़ है? ये कोई मटेरियल है, सही है। तो अगर तो आप ये मटेरियल देख सकते हैं ना, तो ये भी एक नॉन लिविंग थिंग है। ये जिंदा या मुर्दा नहीं है। हम लोग इनमें कोई डिफरेंस नहीं कर सकते, ये नहीं चल सकती जब तक इनको कोई चलाए ना। तो एक तो मटेरियल है, एक है ऐसी चीज जो मर जाए। नॉन लिविंग थिंग जो डाई नहीं हो सकते और उसके पास वो मटेरियल होते हैं ना, बॉडी वो पार्ट खराब हो नहीं सकते होते। हैं, वो डाई नहीं कर सकते। वो इंसान थोड़ी ना है वो, या फिर वो जानवर भी नहीं है। वो तो मटेरियल है जो हम बनाते हैं खुद। दैट आर मैन मेड थिंग्स, ओके। और जो चीज है ना, व्हेन समवन डाइज, अब उनमें कोई भी हो सकता है। वो इंसान खुद हो सकता है, वो जानवर खुद हो सकता है। जानवर की मैं इतनी ज्यादा मिसाल आपको नहीं दूंगा सिवाय इंसानों के। इंसान जो होते हैं ना, जब वो मर जाते हैं तो वो आउटवर्ड्स मरते हैं, यानी लोग उनको सिर्फ उसकी बॉडी को देख सकते हैं। जो रूह होती है ना वो उसी दुनिया में होती है, लेकिन वो इनविजिबल होती है, वो अपनी बॉडी से निकल चुकी होती है। लेकिन वो फिर भी रूह देख रही होती है लोगों को। समझ आई आपको बात? यस खाला। अभी आप लोगों ने पूछा था ना। आई डोंट एग्री विद योर सलाह, क्योंकि तब एक मैन डेड हो जाता है, तो फिर हम ये नहीं कहते कि नॉन लिविंग थिंग, हम कहते हैं कि ये डेड हो गया। हाँ जी, ये भी एक फर्क है। मतलब आप लोगों को आप हल्के हल्के समझ आ रही है। अगर तो नॉन लिविंग थिंग्स की बात की जाए ना आपके सामने, तो आप ये दो रास्ते रख सकते हैं। माज और खाला, आप ये दो रास्ते रख सकते हैं। कोई भी आपसे बोल रहे नॉन लिविंग थिंग क्या होता है वही बताओ, तो आप बता सकते हैं कि दो तरीके की होती है नॉन लिविंग थिंग्स। अब वो पूछेगा वो बताओ तरीके। तो दो तरीके के दो वेज कौन से होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के? एक मटेरियल होता है, एक ऐसी चीज होती है। ऐसी चीज होती है जो पहले चल फिर सकती थी, जो कि लिविंग थिंग थी और वो मर जाएगी। तो अब वो कन्वर्टेड है, दैट इट डाइड। और वो नॉन लिविंग थिंग में वैसे भी नहीं इतनी आएगी जितना मटेरियल्स आएंगे। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? Yes. Yes, I understand. सो वी वर हियर। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द थिंग्स। तो ये जो है ना, ये फर्क बताती है, लाइफ फर्क बताता है नॉन लिविंग थिंग्स में और लिविंग थिंग्स में। अगर मैं यहाँ पे एक और स्लाइड बनाता ना, पहले से ही बनी हुई होती कि व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स, व्हाट इज वन, व्हाट इज अ पर्सन व्हेन इट डजंट हैव लाइफ। वो एक ऐसा पर्सन होता, मतलब देखें, व्हाट इज अ पर्सन हु डजंट हैव लाइफ, इसकी पहले से ही एक स्लाइड बन जानी है। It's a dead हाँ, person. वेरी गुड।
माज और आप लोग सारे देख रहे होंगे कि what is a human when it do not have life? सो वो फिर मुर्दार कहलाया जाएगा, यानी वो मर गया है। ओके, It's a dead body and roux. यस, एग्जैक्टली। सो यानी आप लोगों को डिफरेंसेस समझ आ ही गए हैं। वैसे ख्याल है आपने ऑर्गेनिजम्स पे रिसर्च की थी? ऑर्गेनिजम्स भी लाइफ से ही मिलता जुलता लफ्ज है। No. चले आप कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। Okay. सो यही चीज है कि अगर तो मैं यहाँ पे लिखते अभी मैंने लिखा है ना यहाँ पे कि व्हाट इज अ ह्यूमन व्हेन इट डू नॉट हैव लाइफ, अगर तो उसके पास लाइफ नहीं होती इसका मतलब वो मर गया है। दूसरा ये कि वो जो है ना, ये सारी जो लिस्ट मैंने लिखी हुई है इन सारी चीजों से, खाने पीने से, सूंघने से कोई चीज, वो महरूम रह जाता है, यानी वो उसकी खत्म हो गई होती है ना लाइफ, तो वो तो मर गया होता है। तो वो अभी ये हिल विल नहीं सकता, या फिर उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती, या रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती, या वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, रिएक्ट नहीं कर सकता किसी भी चीज़ पे, या फिर उसकी जो बॉडी होती है, मतलब वो बॉडी होती है, वरना वो अंदर से लाइव नहीं होता। फंक्शंस काम करना खत्म हो जाते हैं, मतलब फंक्शंस बॉडी के सिर्फ उस वक्त काम करते हैं जिस वक्त हमारी बॉडी एक्टिव होती है, हम अलाइव होते हैं। ओके, सो ये उसकी बॉडी डेड हो जाती है लेकिन उसकी रूह डेड नहीं होती क्योंकि रूह कभी भी नहीं डेड होती। यस दैट्स राइट, बिकॉज एंजल्स फिर आके लेकर जाते हैं, फिर उसको उसकी रैंक्स के मुताबिक रखा जाता है। अगर वो जहन्नुमी है तो जहन्नुम में डाला जाएगा, अगर जन्नती है तो जन्नत में डाला जाएगा। समझ आई बात? जी। ओके, हमारा टाइम खत्म होने वाला है, तो फिर आई थिंक सो यहीं तक रखते हैं सेशन, क्योंकि ये फिर और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ एक रुख दिखाया है, मतलब अभी तो मैंने सिर्फ आपको लाइफ के बारे में बताया, व्हाट इज़ लाइफ। तो अब मैं कल आप लोगों को व्हाट व्हाई इज़ लाइफ क्रूशियल फॉर अस ये बताऊंगा, और फिर ये वाली स्लाइड्स भी बनी हुई होंगी, व्हाट इज़ ह्यूमन व्हेन इट डू नॉट हैव लाइफ, ये सारी चीज़ें हैं जी। अखी माज, व्हाट हैपेंड? सलार, जो आपने मुझे होमवर्क दिया था, जो बिग बैंग के बिग बैंग के नोट्स लिखने थे वो मैंने लिख लिया ओके ग्रेट, तो और फिर मैंने आपसे ग्रुप में शेयर भी किया। ओके, तो फिर मैं वो चेक करके आपको बता दूंगी। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके देन डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैरन, अस्सलाम वालेकुम होमवर्क वरहमतुल्लाहि क्या है? वबरकातुहू। होमवर्क है होमवर्क क्या है? हमारा, मतलब होमवर्क ये है कि अभी तो आपके लिए ये सिर्फ होमवर्क है, लाइफ के ऊपर रिसर्च करके आनी व्हाट इज लाइफ, और कुरान पाक से भी वर्सेस निकालनी है लाइफ के ऊपर। व्हाट इज लाइफ, व्हाई इज लाइफ क्रूशियल, मैंने आपको बोला था ना पिक्चर सेंड कर दूंगा इन सारी स्लाइड्स की, ये भी आप चेक कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो। ओके देन डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट मी लीव नाउ, थैंक यू वेरी मच, विल मीट यू टुमारो, जज़ाकल्लाह खैरन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज़ डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़।